नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। ख्वाब खुनाइम में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान के पस मंजर में कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। फौरी कुल जमाती इजलास बुलाने का किया मुतालबा। ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर की मुखालिफत की है। अमित शाह का मगरबी बंगाल में इल्जाम। अल्जीरिया और कोलालमपुर में पार्लियामेंट के कुल जमाती वफूद ने पाकिस्तान की शरंगेजी की तफसील फराहम की। पहलगाम में दहशतगर्दाना कार्रवाई का भी दिया हवाला। शमाल मशरिकी रियासतों में बारिश ने मचाई तबाही। 24 घंटे में 32 अमवात। आसाम में हालात अबतर। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। गुज़िश्ता रोज़ सिंगापुर में ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से दिए गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफ़ाइल तैयारों के तबाह होने के एतराफ़ पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत इस जंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें छुपा रही है और आवाम को मुसलसिल गुमराह कर रही है। इन्होंने इस मसले को गंभीर बताते हुए कहा कि इस मामले पर फौरी कुल जमाती इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। General Chauhan, the Chief of Defence Staff, has spoken. He has spoken from Singapore. It would have been better that what he has spoken, the Defence Minister would have taken the all-party meeting, 2 all-party meetings he chaired, instead of the Prime Minister. The Defence Minister did not say anything on this. It would have been better, it would have been in keeping with our democratic traditions if an all-party meeting had been called, the Prime Minister had chaired, and whatever General Chauhan has said, this information could have been shared with the opposition leaders. A special session of Parliament could have been convened in Lok Sabha and Rajya Sabha, and the same information could have been shared by the Prime Minister. We had to wait for General Chauhan to make these revelations from Singapore. And these are very serious issues which the nation has to come to grips with. 3 days after the Kargil war ended, on the 29th of July 1999, the Vajpayee government set up the Kargil Review Committee. And here I have a copy. It's a 150-page report of the Kargil Review Committee. It submitted its report on 15th of December 1999. 4 members. K. Subramaniam, the Strategic Affairs Guru, the father of Dr. Jaishankar, General Hazari, B.G. Varghese, and Satish Chandra of the National Security Council. This is the signatures in the report. These are the 4 signatures. 150 pages. And do you know, after this report was submitted to the government, to the Vajpayee government, on the 15th of December 1999, this was tabled in Parliament on the 23rd of February 2000. Of course, sensitive matters had been removed, and rightly so, they should be removed. But this report, and it's called From Surprise to Reckoning, this was an analysis of what caused the Kargil war, what lessons for India. See, we have to look to the future. What are the lessons we learn? That's what General Chauhan has said in Singapore. That's what should be debated in Parliament. Because there are military issues, which only the military can discuss. But there are political issues. There are issues relating to political strategy, to diplomatic strategy, economic strategy, particularly in relation to China. And this nexus between China and Pakistan, which has become very apparent during Operation Sindoor. So these are political issues. So we should discuss this in all party meetings with the Prime Minister in the chair. We should discuss this in Parliament with the Prime Minister present in Lok Sabha and Rajya Sabha. And we didn't have to wait for statements to be made from Singapore. We are supposed to be the mother of democracy, right? We have democratic traditions. So let's respect those democratic traditions. बिहार के रहनुमा प्रशांत किशोर ने भी अचानक जंगबंदी पर सवाल उठाए हैं। इन्होंने वजीर खारजा एस जयशंकर से सवाल किया कि आखिर वो क्या बात है कि ऑपरेशन सिंदूर को अचानक बीच में ही तर्क करना पड़ा। देखिए, सीज फायर का जो मुद्दा है, हम लोग के जो देश के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, और पढ़े लिखे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं उनका मैंने एक बयान पढ़ा कि सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर, उनकी पहल पर किया गया। तो मैं ये सोच रहा हूं कि भाई, अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता था, इसका मतलब है कि सेना वाले ठीक कर रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान को हरा रहे थे,
तभी तो पाकिस्तान डर के मारे सीज फायर करना चाह रहा था। तो अगर पाकिस्तान सीज फायर चाह रहा था तो तुम काहे माने भाई? 2 दिन और चलने देते, सेना वाले मार के ठीक कर देते उनको। और अगर पाकिस्तान वाले सीज फायर नहीं चाह रहे थे तो जो आप दावा कर रहे हैं वो गलत है। तो देश के विदेश मंत्री ने कहा है कि भाई सीज फायर हम लोगों ने नहीं किया, पाकिस्तान के पहल पर किया गया। हालांकि ट्रंप महोदय अलग डफली बजा रहे हैं कि हमने किया, हमको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, हमने शांति खाया, हमने धमकाया। लेकिन एक बार को हम ट्रंप की बात क्यों माने? हम तो भैया अपने विदेश मंत्री की बात मानेंगे। हमारे विदेश मंत्री ने, देश के विदेश मंत्री ने कहा कि सीज फायर पाकिस्तान की पहल पर किया गया। तो पाकिस्तान ने पहल क्यों की? उनको पिटाई पड़ रही होगी, हारने का डर होगा, तभी किया होगा। तो भाई यही तो सेना के लोग कह रहे हैं, देश के लोग भी कह रहे हैं कि जब लड़ाई थाम दी थी, अब सायरन बजवा के सबको प्रैक्टिस करवा दिए थे, पाकिस्तान बैकफुट पर था, सीज फायर करने के लिए आपको हाथ जोड़ रहा था, तब काहे सीज फायर किए और 4 दिन चलने देते? तो फिर क्या अब सीज फायर कर लिए तो फिर आके जनता काहे बेवकूफ बना रहे हैं? आपके सामने है कि जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। उसके बाद अब सिंदूर का डिबिया बांटने से तो कुछ होगा नहीं। मगरबी बंगाल में बीजेपी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, अगर दीदी में हिम्मत है तो वो तशद्दुद के बगैर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करें, उनकी जमा पूंजी जब्त कर ली जाएगी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ममता बनर्जी ने वोट बैंक के लिए खुशामद की तमाम हदें पार कर दी हैं। पहलगाम में हमारे लोग मारे गए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने उनके अहम इलाकों को तबाह कर दिया है। 100 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए और इससे दीदी के पेट में दर्द होता है। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की मुखालिफत की। इन्होंने मुल्क की करोड़ों खवातीन के जज्बात से भी खिलवाड़ किया है। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया है। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से दुनिया की गलतफहमी दूर करने और हिंदुस्तान के मौकूफ की वजाहत करने के मकसद से अरकान पार्लिमान का कुल जमाती वफ्द मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर है।
कोलालमपुर में सलमान खुर्शीद ने दहशतगर्दी के मुसलसल सरपरस्ती पर पाकिस्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। We are here combined on one issue, and whatever news you may get from India, you get from what is happening every day in India, that's part of the everyday life of India, the politics of everyday life of India. But we rise above that politics when we come to serve the nation. People, when they go to war, to protect the country, to protect the borders of our country, they go there as essentially as Indians. They have their faiths, they have their languages, they have their cultures, they have their subcultures. But when they are at the border, they have only one sentiment, and that is sentiment to protect Mother India. And that's the sentiment, if you allow me, that we come here. So we often address each other as brothers and sisters in public life. You often do that, brothers and sisters. But when we say we are here, brothers and sisters, we say so because we come here as children of India, and children of Mother India come here to speak on her behalf and to communicate and convey to all friendly countries what our pain is today. Our pain is, and we've just paid tribute to those who were lost in the terrible attack that happened in Pahalgam. That pain must end. It must end for the country. It must end for our brothers and sisters, and it must end for our people. And this is something which only we don't suffer, but the whole world suffers. So in the voice and the cry to put an end to this pain, we are actually speaking up for humanity. We are speaking up for the whole world. And what are we saying? We are simply saying, you live your life and you let us live our life. Our life, which we happen to believe will take us to greater tomorrow, greater movements, greater opportunity for our children. That life is tried to be disrupted by somebody who perhaps doesn't have the vision, perhaps doesn't have the sense to see that their children could also be better off if they adopted different measures in their life. उधर अल्जीरिया में भी जय पांडा की क़यादत में एक और पार्लिमानी वफ्द हिंद पाक जंग के हवाले से पाकिस्तान की शरंगेज़ी और पहलगाम में दहशतगर्दाना वाक़े की तफसील फराहम करने के लिए हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात की। इस वफ्द में मनीष तिवारी, नशिकांत दुबे, असदुद्दीन अवैसी व दीगर शामिल हैं। नागालैंड में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को इस वक्त बड़ा धक्का लगा जब पार्टी के 7 अरकान असम्बली ने पार्टी छोड़कर हुक्मरान नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। NDPP की क़यादत में मौजूदा वज़ीर आला नेफ्यू रिव्यू कर रहे हैं और 7 नए अरकान की शमूलियत के बाद अब असम्बली में उनकी पार्टी की मजमूई तादाद 25 से बढ़कर 32 हो गई है। वाज़ेह है कि नागालैंड असम्बली में कुल 60 नशिस्तें हैं, इसलिए ये इक़दाम NDAP को वाज़ेह अक्सरियत दिलाता है। तमिलनाडु के वज़ीर आला और द्राविड मनित्रा कज़गम DMK के सदर MK स्टालिन ने इतवार को मदुरई में पार्टी की अहम जनरल असम्बली मीटिंग की सदारत की, जिससे 2026 के असम्बली इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तय करने का अमल शुरू हो गया है। इससे कबल हफ्ते को इन्होंने 25 किलोमीटर तवील रोड शो करके इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। इस रोड शो में अवाम का जोश व खरोश और हिमायत काबिल दीद थी। इसके बाद पार्टी की जनरल सेक्रेटरी की मीटिंग में मिस्टर स्टालिन के खिताब पर सियासी हलकों की गहरी नज़र थी, जहाँ उनसे इंतखाबी रोड मैप पेश करने की उम्मीद की जा रही थी। DMK के आला तरीन पॉलिसी सॉस तंजीम जनरल असम्बली का इजलास 48 साल बाद मदुरई में मुनक़िद किया गया। मानसून पहुंचने से पहले ही शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश ने तबाही मचाई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में बारिश से मुतालिक वाक़यात में कम से कम 32 लोगों की जान की इत्तला है। शुमाली बंगाल और मेघालय पर बने कम को दबाव के इलाके की वजह से आसाम, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मगरबी बंगाल में शदीद बारिश हो रही है। सैलाब, ज़मीन खिसकने और मकानों होटलों के मुनद्दिम होने की वजह से कई लोग मारे गए हैं और कई अब भी लापता हैं। आसाम में बारिश के सबब कम से कम 9 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में पानी के तेज़ बहाव की वजह से हाईवे से एक कार बह गई है, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। मिज़ोरम में घर और होटल मुनद्दिम होने की वजह से कम 6 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया के दफ्तर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अप्रैल से रियासत में इंतहाई
प्री मानसून की बारिश की वजह से 71 लोगों की जान चली गई। पहले से पानी बहुत बढ़ गया है, तो इसीलिए पैसेंजर को सेफ्टी देखते हुए हमारा आईडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने फेरी का जो मतलब सर्विस वो टेम्पररी बंद कर दिया है, तो इसीलिए तकलीफ हो रहा है, मतलब पैसेंजर को जाने में तकलीफ हो रहा है। और जो दो पार्क था कमलाबाड़ी और इस्लामिक दोनों पार्क अभी टेम्पररी क्लोज है अभी। तो माजुली का जो फलामुख और कमलाबाड़ी जो पार्क था, मतलब वो अभी टेम्पररी क्लोज है पानी का भाव बढ़ने से। और इस कारण अभी जो पैसेंजर आए हैं, जो यात्री है, वो लोग मतलब यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। वापस जाना पड़ रहा है हम लोग। अभी जाने का तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए वो लोग फिर से लौट के जा रहा है। ये कब तक रहेगा, बंद रहेगा? इसका तो कोई बता नहीं सकता कब तक रहेगा, या 2-3 दिन, नहीं तो जो पिछले साल था ऐसे ही पानी बढ़ने से वो तो 9 दिन बंद था। अभी तो हम कुछ बता नहीं सकते कितने दिन बंद हो सकते हैं। मतलब अभी पानी बढ़ रहा है कि रुका हुआ? अभी बढ़ रहा है। आज तो मुझे लगता है तो आज बढ़ रहा है, मतलब बढ़ेगा आज। इससे भी ज्यादा बढ़ेगा? हाँ, इससे भी थोड़ा लग रहा है। ये तो तकलीफ है माजुली जनसाधारण को। हमारा हॉर्स होता है, जो पानी ज़्यादा हो जाता है ना, उसी समय हमारा फेरी जो बंद हो जाता है। हमारा वो यात्री लोग बोलता है, वो यात्री लोग घर वापस जाना पड़ता है। वो किसी काम लेकर वो जोहार जाना पड़ता है। किसी का कुछ गुवाहाटी जाने वाला है, किसी का काम है ना, वो ऑफिस है, किसी का कुछ काम है, कुछ बिजनेस के लिए जाना पड़ता है। जो अभी हमारा वो ब्रह्मपुत्र का जो पानी ज़्यादा हो गया है ना, इसलिए हमारा ये माजुली कमलाबाड़ी और तो कमलाबाड़ी और निमाती फेरी अभी बंद हो गया है। ये हमारा ये प्रॉब्लम है माजुली वासी को। जो रैंप होना चाहिए वो नहीं होने की वजह से अभी फेरी मतलब बंद हो गया। हाँ, ऐसा ही है। जो हमारा वो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के बारे में क्या करना है। गवर्नमेंट के जो मंत्री वो माजुली आता है ना, वो हेलीकॉप्टर से आता है, हेलीकॉप्टर से जाता है, वो नाव से कभी नहीं आता है। ये तकलीफ माजुली जनसाधारण को मिलता है। जब जनसाधारण की तरफ से वो मंत्री एमएलए आएगा ना, तब उनको पता चलेगा माजुली बाकी कैसे जोरहाट निमाती आते जाते रहता है। ऐसे ही है। गुच्चा शब हैदराबाद में एक रंगारंग तकरीब के दौरान मिस थाईलैंड ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया। खिताब जीतने के बाद मीडिया से बात करते हुए मिस थाईलैंड से मिस वर्ल्ड बनी ऊपल सुचाता ने कहा कि ये उनके देरीना ख्वाब था। मैं वर्ल्ड का ताज पहनने के बावजूद उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि उनका ख्वाब आज तक एक सच में बदल गया है। I was very excited, especially when we were announcing all the girls and their placements. And when I was announced the winner, I still couldn't believe it. I was very confused because it was so unreal. Because me and my people, we've been waiting for the first crown of Miss World for more than 72 years. It is such an honor to be able to bring back home the first crown. So the moment I was crowned, all I thought about was the faces of my family, my people, my team, and everyone. So I cannot wait to really bring back this crown to Thailand. This is the first time when Thailand is winning the Miss World game. Yes. And so you have one. Yes, I would love to continue on my purpose, which is breast cancer. And I am glad that being here at Miss World, a lot of people know more about my Beauty with a Purpose project and have more awareness in the cause that I'm standing up for. So I believe that with the Miss World title in the future, I could definitely make more impact and also helping other projects that are in need as well. So now that you've achieved this success, how you like to define how? Now I would like to define Miss World as my success because I just received it and it's the highest, it's the most honorable success I've ever had in my life. But if I could define another way of success, I would say that to live your life and to create the life that's better for people around you as well. That's also success of being alive. So could you lastly could you tell us about your sister? Yes. How you have been
other contestants from around the world. I actually posted a picture of all of us together before I went on the final coronation night, and I said that I never believed that one can have a friend from around the world. And by a friend, I mean a friend full of love, support, companionship. But I received it here at Miss World, and I think it's a very beautiful thing. It's one of the best opportunity I ever had in my life to get to know everyone, not just their cultures, but also their inspiring stories that in the future inspires me. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान के पस मंजर में कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। फौरी कुल जमाती इजलास बुलाने का किया मुतालबा। ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर की मुखालिफत की है। अमित शाह का मगरबी बंगाल में इल्जाम। अल्जीरिया और कोलालमपुर में पार्लियामेंट के कुल जमाती वफूद ने पाकिस्तान की शरंगेजी की तफसील फराहम की। पहलगाम में दहशतगर्दाना कार्रवाई का भी दिया हवाला। शमाल मशरिकी रियासतों में बारिश ने मचाई तबाही। 24 घंटे में 32 अमवात। आसाम में हालात अबतर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।